Hello students, hi, this is Pankaj Singh. Welcome to Trident's Chemistry, where we will learn topics of chemistry in conceptual and tricky ways. So, let's begin. हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट, करेक्ट? और उसके फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे, राइट? मैंने आप लोगों को कुछ हिंट भी दिए थे, लाइक इफ वी हैव रिटन 1 ग्राम एटम मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मोल of atom. Okay, if you are talking about 1 gram molecule, it means we are talking about 1 mole molecule, so 1 mole of atom. If 1 gram molecule मतलब 1 mole of molecule. If 1 gram iron, so 1 mole of iron, correct? And already I have told you all what is number of moles. Yes, अगर हमें number of moles calculate करना है, हम क्या करेंगे? given mass upon molar mass, and already you all know what is meant by molar mass now in the last lecture. So let us have the formula so that I can solve the question based on mole concept, which will come under the Homi Baba questions. For example, let us have this example, or let us have to understand this question. Before the question, we should know the exact formula. We should know the exact formula कि अभी मोल कंसेप्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. क्या हमें पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल आते हैं, या 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू व्हाट? कैन आई से 1 mole of any substance, 1 mole of any substance, it can be atom, molecule, compound or ions, will be equal to its molar mass. एंड मोलार मास आपको पता है हम किस में कैलकुलेट करते हैं बच्चों? ग्राम में, ठीक है? इज इक्वल टू एन ए पार्टिकल. अब वो पार्टिकल क्या हो जाता है? अगर आपके पास 1 मोल ऑफ एटम है तो एन ए एटम हो जाएंगे. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो एन ए मॉलिक्यूल हो जाएंगे. 1 मोल ऑफ कंपाउंड है तो एन ए कंपाउंड हो जाएंगे. 1 मोल ऑफ आयंस है तो एन ए आयंस हो जाएंगे. और एन ए का वैल्यू यू ऑल नो दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23. ठीक है? तो दिस इज अ रिलेशन, मतलब इट्स लाइक ए बी and C. Any two relation I can use, like if A is equal to B, B equal to C, so I can say A is also equal to C, correct? Second formula which I have is directly number of moles. If you want to calculate the number of moles, the N is a representation of number of moles. It has a formula given mass upon molar mass. ये अब डायरेक्टली कर सकता हूँ, ठीक है? और तीसरा जो फॉर्मूला है दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी. एसटीपी क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जो टेम्परेचर हम लेते हैं बेटा वो 273 केल्विन लेते हैं. प्रेशर वी टेक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एन इंटू 22.4 लीटर. एंड यू नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 milliliter. One more thing, 1 centimeter cube is equivalent to 1 ml, and 1 centimeter cube का short form क्या होता है? cc, centimeter cube. And if I write 1 decimeter cube, it is equal to 1 liter. तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिसके थ्रू आप मोल कंसेप्ट के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हमारे पोर्शन में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मोल कंसेप्ट. और कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क मिलेगा, आपको सॉल्व करना है सेल्फ. एंड इफ यू फाउंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज और एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ड्यूरिंग द लेक्चर. ओके, नाउ लेट अस मेक द वाई मैप ऑफ दिस फॉर्मूला which will make you to understand, like you can remember this formula in anywhere, like जो मैंने अभी लिखा फॉर्मूला वो, और एक वाई मैप के तरीके से. तो सपोज
if at the center I have a mole, if at the center I have the moles, just a second, let me first draw this pattern, so it will become more easy or more convenient for me to make you understand the topic. Okay, you can get this sign of arrow where I'm going, where to going. Okay, so suppose at the center we have mole, that is n. Okay, on the one side we have number of particles. I know you already know number of particles, it can be atom, molecule or ions. In this second side you should know this is nothing but given mass. Given mass मतलब calculate भी करना पड़ सकता है और दिया भी हो सकता है, and what it could be, volume of gas at STP. देखो बहुत सिंपल सा फंडा है. If you want to calculate the number of particle and moles is given, correct? So you are moving from moles to particle. So you have to just multiply with the Na, and Na already you know that is 6.023 into 10 raised to 23 particles. Or if you have given with the number of particle you want to calculate moles, just divide the number of particle by Avogadro's number. This is also called as Avogadro's number. And suppose if you want to calculate the moles and given mass is given, तो आप क्या करते हो, given mass divided by molar mass. और अगर मोल दिया हुआ है given mass चाहिए तो क्या करना है बेटा, molar mass के साथ मल्टीप्लाई कर देना. If you want to calculate volume of gas at STP, तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 22.4 लीटर. एंड अगर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी को 22.4 लीटर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है. अब देखो इसके फॉर्मूले जितने सिंपल होते हैं उतने क्लियर होता है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. तो वंस यू डन विद दिस फॉर्मूला, then you can go ahead for the solving of questions. So today we'll complete this chapter after completion of this mole concept, because we don't have lots of questions for the Homi Bhabha, but basic concept ऊपर questions पूछे जा सकते हैं. And the final part of this chapter will be the radicals, how to make the formula making. तो वो मैं आपको explain करूंगा at the same time. So our chapter will get complete in today's lecture. Okay, fine. So now, right now, I'm moving for the questions to be solved based on the mole concept. Questions are little bit tricky. Questions are little bit tricky and interesting questions we can say. So now already we have a formula. Yes, together we have a formula. Now let us talk about the question number 1. Yes, everyone, how can we solve this? What is the question? Avogadro numbers represent the number of atoms in. So what is the answer? One by one I'll solve each and every question, so you have to understand. Avogadro number represent the number of atoms in. Yes, तो आपको पता ही होगा. Answer is 12 gram of C12 gram. लाइक अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर कैसे किया, हमने बोला था नंबर ऑफ एंटिटीज और एंटिटीज और पार्टिकल प्रेजेंट एज मेनी प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12. तो 12 ग्राम ऑफ C12 में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उतने ही पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, Avogadro's number. Okay बच्चों, I hope you all got this. Fine. Now let us move to the question number 2. What is the question here? आप लोग को साथ में क्वेश्चंस लिखते भी जाने हैं और उसको सॉल्व करते भी जाना. मेरा सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा है तो आप देख लो, ठीक है, कैसे सॉल्व किया गया है क्वेश्चंस. और पहले ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, नहीं सॉल्व होगा तो वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन आप देख सकते. ओके
Now, the question is number of moles of carbon dioxide which contain 8 gram of oxygen is. What does it mean? अगर मैं relate करूं, if I talk about 1 mole of carbon dioxide, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 mole of carbon dioxide मतलब 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज 44 ग्राम मोलार मास है. मोलार मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल, है ना. अब इसमें पार्टिकल नहीं पूछा था यार, मैंने बताया था रिलेशन ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी. तो कोई भी दो रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन होता है तो कहना इससे 1 मोल ऑफ CO2 इज 44 ग्राम ऑफ CO2. अभी 44 ग्राम ऑफ CO2 मतलब क्या? 44 ग्राम CO2 मतलब क्या कि भाई इसके अंदर 12 ग्राम कार्बन था एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन था. बरोबर है. तो व्हाट आई कैन से कि 1 मोल of CO2 contain 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो क्या मैं बोल सकता हूं 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने मोल CO2 होंगे? यस. तो इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. यू कैन मेक दिस 1 into 8 डिवाइड बाई 30. So you know 8 ones are 1 by 4. So the answer will be 0.25 moles. I hope now you all are getting this how to approach question. How to approach a question. Clear? Understood everyone? Okay, fine. So I'm just clearing it off. Let us move to the next question. Question number 3. The total number of ions present in 111 gram of calcium chloride is. The total number of ions present in 111 gram of calcium chloride. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड. अब मोल्स क्या होगा बेटा? गिवन मास अपॉन मोलार मास. तो अगर मोलार मास हम कैलकुलेट करते हैं किसका? कैल्शियम क्लोराइड का, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया है, तो आपको पता है कि कैल्शियम का मोलार मास 40 है, एक क्लोरीन का 35.5 है, तो दो का कितना हो जाएगा? 71. तो टोटल मोलार मास आएगा 111 ग्राम आएगा. तो कहना इससे गिवन मास भी 111 ग्राम है और मोलार मास भी 111 ग्राम है. तो कितने मोल्स हो गए? 1 मोल CaCl2 हो गया. अब बात को समझो. आपको पता है जब भी CaCl2 ब्रेक होता है तो ये बनाता है Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस आयन, मतलब 1 कैल्शियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन. बरोबर है. ये कितने हैं? 1 है ना. तो हो गया, आंसर आ गया कि 1 मोल ऑफ CaCl2 गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस, जिसमें एक कैल्शियम है और 2 क्लोराइड है. तो आंसर विल बी 3 moles of iron. Total number of ions in the 1 gram of CaCl2. सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है. Now let us move to the question number 4. Tell me now, which of the following weigh the most? Which of the following weigh the most? 1 gram atom of nitrogen, 1 mole of water, 1 mole of sodium and 1 molecule of H2SO4. सबका क्या पूछा इन्होंने? वेट पूछा. मोलार मास नहीं पूछा, वेट पूछा, जिसको हम बोलते हैं गिवन मास. तो याद है, अगर आपको गिवन मास जानना है तो मोलार मास क्या हो जाएगा? मोलार मास इधर लिख दिया तो यहाँ पे आपका मोल हो गया. तो गिवन मास ज्यादा तो तभी होगा ना जब मोल से ज्यादा होगा. तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन बेटा. मोलार मास ज्यादा होगा तो मोल्स कम हो जाता है, और मोल्स कम हो गया तो गिवन मास भी कम. एक तरह से मतलब रिलेशन देखो ना, गिवन मास एंड मोल्स का रिलेशन क्या है? डायरेक्ट है. तो याद करो, ऐसा कभी पूछेगा तो सबका मोल्स देखने का कितना है, सबका मोल्स. अब सारे क्वेश्चन में देखो मोल्स दिए हैं क्या? नहीं. कैलकुलेट कर लो. अब 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब क्या? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम.
और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना हो जाएगा 14 ग्राम। देन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 18 ग्राम। फिर 1 मोल ऑफ सोडियम, उसका मास कितना होता है 23 ग्राम। अब बोला है दिस इज नॉट 1 मोल, दिस इज 1 मॉलिक्यूल, दिस इज 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ये मॉलिकुलर मास पूछ रहा है और आंसर अपने को ग्राम में चाहिए। तो H2SO4 का मास कितना होता है 98, तो 98 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप ऐसे भी सोच सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 1 मॉलिक्यूल है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये इसका मॉलिकुलर मास है और ये इसका यू का वैल्यू है, तो ग्राम में आ जाएगा। इसको आप 1 मॉलिक्यूल मतलब हमें पता ही है कि 98 ग्राम में 98 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होगा। तो एक मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा, तो डिवाइड कर दो, मतलब वही हो गया 98 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। और रिलेशन मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया है कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इस 98.1 जो 1.66 इंटू 10⁻24 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एन इन ग्राम। याद है मैंने आप लोग को बताया था रिलेशन 1 mU कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एन इन ग्राम। तो बस ये एन हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका है, जल्दी देखो फटाफट। तो द आंसर इज I hope you all got this. Yes, everyone? Fine. Sure. Question number next. Very important, very simple. Check it out. Total number of atoms present in 17 gram of NH3. ठीक है, पहले तो उसके लिए मैं क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों, मोल्स ऑफ NH3। गिवन मास कितना है 17, और आप लोग को पता होना चाहिए NH3 का मोलार मास कितना होता है 14 + 3, मतलब ये भी कितना हो गया 17 ग्राम। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 17 ग्राम, कितना आ गया 1 मोल। अब हमें पता है 1 मोल में, देखो बात को समझो कैसे कैसे क्लियर किया जाता है अपने कंसेप्ट को। हमें पता है 1 मोल NH3 में NaNH3 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल अगर बात करें तो, लेकिन 1 इंटू Na नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन का एक ही एटम है ना एक फॉर्मूला में, और 3 इंटू Na हाइड्रोजन के एटम है। और अगर क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो क्या करोगे बेटा, अमोनिया में एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मतलब 4 इंटू Na। तो आंसर क्या होना चाहिए 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर 4 की जगह पे ये होना चाहिए था ऑप्शन। ओके, तो ये 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाता ऑप्शन नंबर डी। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ये आप लोग आंसर बताएंगे खुद से। तो जो हमारा लेक्चर होगा लाइव लेक्चर, तो हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अ सिंबल नॉट ओनली रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट बट आल्सो रिप्रेजेंट व्हाट, its atomic number, its gram atom, its atomicity, reactivity. A symbol, जैसे मैंने बोल दिया नाइट्रोजन का सिंबल है, ठीक है 7 and 14, ये सिंबल हो गया पूरा। तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर या 1 ग्राम एटम या इट्स एटॉमिसिटी। तो सिंबल जो है क्या क्या रिप्रेजेंट करता है आपको इसमें से बताना है सेलेक्ट करके। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू ऑल। सो नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now what is the question which has a maximum number of atoms? मैंने आपको पहले बताया है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ
एटम को हम रिलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ एटम इससे भी देखा जाता है कि उसकी एटॉमिसिटी क्या है। जैसे वे सब सिंगल एटम वाले हैं तो सबका एटॉमिसिटी एक है, तभी हम इसको रिलेट कर पाएंगे। अब जैसे एक मान लो यहाँ पे Ca फिर Cl2, तो इसमें अगर एक एटम तो इसमें ऑटोमेटिकली दो एटम हो जाएंगे, तो एटम की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स में। तो जब सेम एटम वाले नंबर ऑफ एटम, तो मोल्स को हम कंपेयर करते हैं। तो देखो सबका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ना। अब 24/12 कर लो, 56/56 कर लो, 27/27 कर लो, 108/108। ये हम क्या कर रहे हैं, हम गिवन मास अपन मोलार मास करिए, 2 मोल आएगा, 1 मोल, 1 mole, and this is again a 1 mole. What does it mean? Which has a more number of moles in these questions? The answer is carbon. So which has a more number of atoms? The answer is carbon. So option A we will select. क्योंकि एक मोल में Na एटम्स होते हैं, 2 मोल्स में कितने एटम्स हो जाएंगे बच्चा? N 2 Na एटम्स। कितने जाएंगे? 2 Na atoms. Okay students? Fine. Now the question number 8. It'll feel little difficult but interesting. How to solve this question? The question is very simple. Number of atoms of oxygen present in 10.6 gram of Na2CO3 will be. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ Na2CO3। तो गिवन मास कितना बेटा? 10.6। अगर हम इसका मोलार मास कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? 2 into 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 into ऑक्सीजन का 16, तो इट विल कम अबाउट 106। तो हमने लिखा है 106। तो कितना ग्राम आएगा, कितना मोल आएगा? 0.1 मोल, ठीक है, 0.1 मोल। अब देखो रिलेशन में कैसे यूज कर रहा हूं। फ्रॉम द रेफरेंस, इफ आई से आई हैव 1 मोल ऑफ Na2CO3, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर 2 मोल ऑफ Na है, देखो फॉर्मूला के साथ ले रहा हूं मैं, 1 मोल ऑफ कार्बन है एंड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ये किस में है बेटा? ये 1 में है। तो कैन आई से इफ 1 मोल ऑफ Na2CO3 हैव 3 मोल ऑफ O, तो क्योंकि एटम की बात किया ना, तो 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 कितना ले लेगा? 0.1 into 3 डिवाइड बाय 1, तो आंसर आएगा 0.3 मोल्स। तो आंसर देखो कौन सा है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, 0.3 को 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 6 3 18 होता है, तो 6 इंटू 0.3 करोगे तो 1.8 अप्रोक्सीमेटली आएगा इंटू 10⁻23। तो यू कैन सी द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया? सो हियर वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ मोल कांसेप्ट, ठीक है, ओके। दिस क्वेश्चन वाज ऑफ गुड लेवल, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 15 liter of H2 gas at STP, 5 liter of nitrogen gas at STP, 0.5 gram of H2 and 10 gram of O2। तो अब तो उसी पे डिपेंड करेगा जिसका मोल ज्यादा होगा, क्योंकि सबके एटॉमिसिटी क्या है? 2 है, तो मोल्स निकाल लो। अब देखो गिवन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मीटर में मोल्स निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ये भी मैंने बताया था, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम, सॉरी इट्स नॉट मोलार मास, इट इज मोलार वॉल्यूम। आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है 22.4 लीटर, ठीक है। देखो फॉर्मूला था ना वॉल्यूम गैस एट एसटीपी, तो वो वॉल्यूम दिया रहेगा इंटू एन इंटू 22.4 लीटर था, डिवाइड कर दो। और अगर मोल्स निकालना है मास के टर्म में तो कैसे कैलकुलेट करोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या आएगा आंसर? तो हम क्या करेंगे, सबका मोल्स निकालते हैं। तो इसका होगा 15/22.4 लीटर। देखते हैं मोल्स कितना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5/22.4 लीटर
अब ये गिवन मास अपन मोलार मास, तो क्या हो जाएगा 0.5 ग्राम। मोलार मास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का 2, तो 10 ग्राम ऑफ O2, तो 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 32। ओके, नाउ लिसन इट केयरफुली। अगर मैं 15 को डिवाइड करता हूं तो 15 डिवाइडेड बाई 22.4, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम 0.67 moles. If I am dividing 5 divided by 22.4, so approximately I am getting 0.22 moles. If I am dividing 0.5 divided by 2, how much it is? 0.5, yeah. 0.5 divided by 2, so it is coming 0.25 moles. And if I am dividing 10 divided by 32, so 0.3125 moles. I hope you all got this. So now tell me, which option has the maximum moles? Which option has the maximum moles? तो answer is sir option number 1. तो सिंपल सी बात है, जिसमें मोल ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे. आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस क्वेश्चंस. करेक्ट, फाइन. नाउ let us move for the very important question, and then we will end this lecture. Okay, fine. So this question is done. Now 10, 11 and 12 are left. So I think these much questions are sufficient. I'll put forward more extra questions to you all, so you can all solve these mole concept questions. Fine. Now the question number 10, the number of gram atom of oxygen. मतलब basically what is gram atom? They are asking about mole of atom of oxygen. मतलब यहाँ पे वो ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है. अब देखो दिया क्या है यहाँ पे, देखो अब इतना समझ लो बेटा कि 1 मोल ऑफ CO में 1 मोल ऑक्सीजन एटम है और 1 मोल कार्बन एटम है. बरोबर है, ठीक है. अब देखो यहाँ पर रिलेशन में क्या दिया है, मॉलिक्यूल दिया पहले से, तो याद है मैंने सर्कल बनाया था, यहाँ मोल लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल. ठीक है, मैंने बोला था अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए तो Na से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर मोल चाहिए तो Na से डिवाइड कर दो, तो हो गया आंसर यहाँ पे सॉल्व. तो अगर आपको मोल्स निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल से तो कैसे करोगे, गिवन पार्टिकल अपॉन Na. तो गिवन पार्टिकल कितना बेटा 6.02 इंटू 10 रेज टू 24 डिवाइड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू 23. ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10 रेज टू 1. 10 रेज टू 1 मतलब कितने मोल हो गए, इस नंबर ऑफ पार्टिकल में इतने में 10 मोल है क्या CO. तो अगर 1 मोल CO में 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 10 मोल CO में कितना होगा 10 मोल ऑक्सीजन एटम. क्या बात सबको समझ में आ गई? ओके, फाइन. देन क्वेश्चन नंबर 11. Then question number 11. Okay, read the question. All of you just read out the question. 5.6 liter of gas at NTP. यहाँ पे बेटा याद रखना NTP and STP both are same, तो टेंशन नहीं लेना थोड़ा भी. Are found to have the mass of 11 gram, the molecular mass of the gas. तो याद होगा आपको एक फॉर्मूला लिखा था हमने, वॉल्यूम ऑफ गैस STP. तो अब यहाँ पे STP की जगह क्या लिख देंगे NTP. ठीक है, तो N इंटू 22.4 लीटर था. तो अब N क्या होता है, गिवन मास अपन मोलार मास, तो लिख दिया यहाँ पे गिवन मास अपॉन
इंटू 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। ओके, तो गिवन मास कितना है यहाँ पे 7 ग्राम। मोलर मास हमें नहीं पता, हमने एक्स कंसीडर कर लिया। गिवन वॉल्यूम कितना है 5.6 लीटर और वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो x इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 22.4 अपॉन 5.6, तो दिस इज 4 टाइम्स, तो x इक्वल टू 44 लीटर। तो आंसर विल बी 44 लीटर। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया बच्चों सारे? ठीक है, नाउ आई थिंक दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, हमने किया था ये क्वेश्चन, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। तो एक मैं काम करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12 की जगह पे एक मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप लोगों के लिए होमवर्क का काम करेगा। तो ऑप्शन कैलकुलेशन, मतलब डायरेक्ट इसमें मैंने ऑप्शन नहीं देना आपको। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of electron in 1 kg of it, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे हमें इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ water molecule, calculate number of water molecule in 1 drop of it if 1 ml contain 20 drops. For your reference, Na will be given, that is 6.023 into 10 raised to 23. So these 3 questions are the questions which are homework for you all on the topic of mole concept. If you solve this, so it will be highly useful for you all. Okay, understood everyone? चलो ठीक है, so I hope you all have understood how the question of mole concept to be solved. ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, अच्छे सॉल्व कर लेना। अगर समझो ये क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आप डायरेक्टली मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे करना था, या हमें हिंट दे दो, हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके एवरीवन, चलो बाय, थैंक यू।